Hi, all the students. Welcome to Icon Says Cat YouTube channel. My name is Anil Chaudhary, your coach, your mentor for the VARC section of CAT. On this video, especially for the students who are going to take CAT 2024. So when we talk about verbal ability and reading comprehension, this becomes the very first section of CAT. And students, for the last 3 years, we see that 24 questions have been coming. And out of these 24 questions, 16 questions are purely based on reading comprehension passages. We generally see that 4 passages are given to us, and on each and every passage 4 questions are there. And जो बचे हुए 8 questions are, they are also generally based on para jumbles, para summary, parenthesis. So these kind of patterns are commonly asked. But one thing is loud and clear, students, अगर CAT की English को crack करना है, you people will have to understand what is the importance of reading. Believe me, students, you like it or not, you love it or not, but you will have to make reading a part and parcel of your life. So students, this becomes the very first class. Icon Ace CAT, we have launched a complete online course for CAT 2024. And you people are going to have hundreds of hours of classes, not only on VA plus RC, but at the same time Quant and DI plus LR as well. And out of all those classes, a few classes we have actually posted on this channel so that you people can have a feel of what is the depth of the content and how beautifully we people are going to cover the complete syllabus as well. Believe me, students, अगर आप एक्चुअली बहुत बड़े नामों के पीछे नहीं भागना चाहते हो और एक ऐसी टीम के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो जो बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी हैंड होल्डिंग करके आपके कैट की तैयारी करवाए, तो believe me, students, Ace CAT, this becomes the best platform for you. Students, you go through all the videos, you will actually come to know how these videos have been made and what is the depth of the content as well. We have been training the students for CAT for the last almost 20 years. And I have seen so many students of ours, thousands of students completing MBA from one of the best B schools, and hundreds of students who have actually completed or studying in the best of the IIMs. So now students, stay tuned with us, and we are going to start with the very first class. And the name of the first session is Mastering Reading Comprehension. Students, this becomes the most important area for CAT. 16 questions. And believe me, students, एक बार अगर passages पर आपकी बहुत अच्छी command बन गई, believe me, students, जो confidence होगा CAT पे वो बहुत high होगा. And when we talk about this complete course, we are not only going to take classes on reading comprehension, but along with that, we are going to have a detailed discussion of grammar. You people are going to have a detailed discussion on vocab as well. I do understand the students who will be taking CAT will not limit themselves only up to CAT. But besides CAT, you will be taking the other management entrance exams also. For SNAP, for NMAT, and for ZAT, and for the other papers. Grammar also plays a very important role. Vocab also plays a very important role. So anyway, students, we are not going to ignore them as well. But right now, let us focus on CAT English. Reading comprehension. In this video, students, we people are going to discuss what is the importance of reading comprehension, what to read, types of passages, types of questions, and how to improve reading speed. सबसे पहले तो students do understand what is the importance of reading. You people see, आप देखोगे CAT का जो पेपर आता है, that is more of reading oriented. CLAT का जो पेपर आता है, that is totally reading oriented. And then students, if I talk about BB entrance exams, banking, SSC, इन सब पेपर्स में आप देखोगे स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का अच्छा खासा वेटेज है. बट स्पेशली CAT एंड CLAT, ये दो पेपर्स तो पूरी तरह से रीडिंग ओरिएंटेड है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आखिर ये एग्जामिनर्स इतने रीडिंग को लेकर कॉन्शियस क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट द रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब किसी बच्चे की रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है तो आप मान के चलो स्टूडेंट्स, उसका थॉट प्रोसेस भी बड़ा मैच्योर्ड होता है, उसका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होता है. यू पीपल माइट हैव सीन, जितने भी कंपनीज के टॉप सीईओज हैं, इन सब सीईओज में अगर आप देखोगे, देयर इज वन हैबिट विच इज़ वेरी कॉमन, एंड दैट हैबिट इज रीडिंग. अच्छे सीईओज ओके हमेशा बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, एंड स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, वो अच्छे रीडर्स होते हैं इसीलिए सीईओज बनते हैं. अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि सर सीईओ बनने के बाद कोई अच्छा रीडर बनता है. नो, you become a very good reader, and you will see like the chances of you becoming a very good CEO will always be there. And that is the reason, students,
हम रीडिंग पर हमेशा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पैसेज को पढ़कर उसकी नीटी ग्रिटी को समझकर उसके लैंग्वेज की फाइननेस एंड सटल्टीज को समझकर एंड वेरी क्लोज जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करके if a student is able to give the correct answer, that itself is a very good test of the logical ability of the student. That itself is a very good test of how mature the student is. So believe me, अगर मुझसे भी कोई कहा जाए, मुझसे भी कोई कहे कि सर आपको एक पेपर सेट करना है इंग्लिश का, so instead of giving direct questions on vocab, which actually test the memory of the students, I'll focus more on reading comprehension. So that is the reason students RC क्यों important है ये आपको मैंने बता दिया। और वैसे भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था मार्क ट्वेन। ओके, चलिए मैं क्लास पर आ ही रहा हूँ स्टूडेंट्स, बट उसके पहले ये इंट्रोडक्शन मुझे देना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ और आपका इंटरेस्ट कल्टिवेट करूँ रीडिंग को लेकर। एक होता है इस ज़बरदस्ती पढ़ना और एक होता है इंस्पिरेशन के साथ पढ़ना। तो बिलीव मी, थोड़ा सा इंटरेस्ट और इंस्पिरेशन आएगा ना तो इन क्वेश्चंस को और आरसी को मास्टर करना विल नॉट बी वेरी टफ। So this famous philosopher Mark Twain gave a very famous quotation. He said, "The people who don't read good books are no better than the people who cannot read them." जो लोग अच्छी किताबें नहीं पढ़ते are no better than the people who cannot read them. तो स्टूडेंट्स अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में कहूँ तो हम में और गंवारों में कोई फर्क नहीं है। हम पढ़ सकते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। So that is the reason we are no better than the people who cannot read them. So do understand students, पढ़ सकने से डिफरेंस नहीं आएगा। If you want to create a difference, you will have to ultimately read. Okay? चलिए, so students, this becomes the first class on reading comprehension. We people have to first understand what is the importance of RC, जो कि मैंने काफी कुछ बता दिया। Now the question arises, what to read, what are the various types of passages, what are the various types of questions, and how to improve reading speed. कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, they are under a myth. उन्हें ये भ्रम होता है कि सर रीडिंग स्पीड बढ़ा लो, the job is done. But believe me स्टूडेंट्स, केवल रीडिंग स्पीड को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। We people have to ensure that our reading speed remains good, but without compromising with the accuracy and without compromising with the understanding. तो बिना अंडरस्टैंडिंग को पुअर किए अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो वेल एंड गुड, बट अगर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं केवल फास्ट पढ़ता हूँ, दैट मेक्स नो सेंस। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने कहा था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमें लगता बहुत सिंपल है। हमें लगता है कि सर व्हाट इज सपोज टू बी डन। There are some unseen passages we people can read, and I see a majority of the students who belong to English medium schools, for them reading is not a big deal. So possibly such students may think like कि सर करना क्या है, पैसेज को पढ़ा और क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, but actually ये पैटर्न उतना सिंपल होता नहीं है जितना लगता है। Now what are the common challenges? The first challenge is subject matter being new. अब स्टूडेंट्स सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में वो है टॉपिक ऑफ द पैसेज। आखिर वो पैसेज जिस टॉपिक पर होता है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेदर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड वेदर विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स और नॉट। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से, टॉपिक ऑफ द पैसेज। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई सी दैट जनरली जो बॉयज होते हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में। ना पॉसिबल स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने स्पोर्ट्स का कोई भी पैसेज आ जाए, आप हो सकता है उसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, फटाफट पढ़ पाएंगे, ऑप्शंस में से कंपेयर करके आंसर्स भी दे पाएंगे। नॉट बिकॉज योर इंग्लिश इज गुड, बट बिकॉज द टॉपिक ऑफ द पैसेज वॉज सच जिस पर पहले से आपको काफी नॉलेज था एंड यू हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट ऑल्सो। बट नाउ इफ द सेम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट पैसेजेस ऑन फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिस पर हमने आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं अंडरस्टैंड, तो अब ऐसे पैसेजेस को सॉल्व करना विल नॉट बी इजी फॉर अस। एंड हियर द चैलेंज इज नॉट दैट, द चैलेंज इज नॉट इंग्लिश, द चैलेंज इज द टॉपिक। फिर हमें क्या लगता है कि सर माई इंग्लिश इज पुअर इसलिए मैं पैसेज समझ नहीं पाया, बट एक्चुअली स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम एक्चुअली टॉपिक ऑफ द पैसेज में है। आप जस्ट इमेजिन करो किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के सामने
RNA, DNA एंड वायरसेस या फिर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इससे रिलेटेड कोई पैसेज आ जाए, आप देखोगे उस स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. एंड सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस बैकग्राउंड. इफ दे कम अक्रॉस अ पैसेज ऑन बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ओके, GDP, GNP, तो स्टूडेंट्स ऐसे बच्चों के लिए देखिए बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी टफ. Not because their English is poor, but because the topic, okay, they are not aware about the topic. So what is the learning here? The learning is, सबसे पहले अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो रीडिंग करना स्टार्ट करो. बट अगर आप रीडिंग करते हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैसेजेस ही पढ़ते हैं या एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बुक्स ही पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज अपनी रीडिंग को डाइवर्स करो. दैट इज द रीजन वी कीप सजेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स. मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कितनों का इंटरेस्ट है रीडिंग में. ठीक है, बहुत कम बच्चों का होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, दे से दैट कि सर वी हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग. फिर जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट डू यू रीड, जनरली स्टूडेंट्स से कि सर हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, तो पॉसिबली स्पोर्ट्स का कॉलम ही पढ़ते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, व्हाट हैपेंस इज जब स्टूडेंट्स हम सिर्फ नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस ही डेवलप होता है एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वोकैब ही समझ में आती है. बट हमें क्या करना है, अपनी रीडिंग को डाइवर्स करना है. सो दैट इज द रीजन वी सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक ऑफ 300 पेजेस, आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स कीप रीडिंग 300 डिफरेंट आर्टिकल्स, 300 डिफरेंट एसेज. तो मैं 300 पेजेस एक ही किताब पर एक ही थीम की पढ़ूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं 300 डिफरेंट एसेज पढ़ूँ, 300 डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ूं. तो आप देखोगे स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को क्रैक करना विल बिकम इजी फॉर यू. ओके, आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. तो सबसे पहले अपनी रीडिंग स्पीड को, अपनी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्स करो, आपके अपने सब्जेक्ट्स को डाइवर्स करो, तो डाइवर्स चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सेकेंड जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, दैट इज लैंग्वेज बीइंग इनकॉम्प्रहेंसिबल. अब जब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स लैंग्वेज बीइंग इनकॉम्प्रहेंसिबल, व्हाट डज इट मीन? ये जेन्युइनली कई बार इंग्लिश भी बहुत टफ आती है. कई बार स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स आते हैं पैसेजेस में, पॉसिबली उनके मीनिंग्स हमें पता ही नहीं होते हैं. एंड समटाइम्स इवन इफ द वर्ड्स आर वेरी सिंपल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड पॉसिबली द सेंटेंसेस आर वेरी लेंथी ऑल्सो. तो इन सब की वजह से लैंग्वेज टफ हो जाती है एंड पॉसिबली जिसकी हैबिट नहीं हो उसके लिए इट बिकम्स अ ट्रू चैलेंज. बट एनीवे, इसका तो एक ही समाधान है, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे स्टूडेंट्स अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और हम अपनी क्लासेस में आपके साथ बहुत अच्छे लेवल के पैसेजेस आपके वी विल कीप डिस्कसिंग, जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन वी विल एक्सप्लेन टू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार टफ पैसेजेस को भी हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड. देन कमिंग ऑन, ऑप्शंस बीइंग टू क्लोज, यस दिस इज अ रियल चैलेंज. आपको पता है मैं जितने बच्चों से बात करता हूं कि भाई इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस में क्या चैलेंज है, अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे कीप सेइंग दैट कि सर एक्यूरेसी बहुत सफर करती है, वी आर नेवर श्योर अबाउट वेदर वी आर गिविंग द राइट आंसर्स और नॉट. एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एक कॉमन कंप्लेन होती है कि सर अमंग द 4 ऑप्शंस हमें ये तो पता चल जाता है कि दीज 2 आर नॉट द करेक्ट आंसर्स, बट बिटवीन द रिमेनिंग 2 वी ऑलवेज टेंड टू मार्क, और वी जनरली टेंड टू मार्क द रॉन्ग आंसर. तो बचे हुए 2 में से जब हमको चूज करना होता है तो जनरली हम लोग गलत आंसर की तरफ ही मोटिवेट होते हैं. आज हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर भी पाएंगे या नहीं. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शंस बड़े क्लोज होते हैं, यस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बट हियर टू मास्टर दिस, ओके, टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक्यूरेट आंसर्स दें, यू पीपल विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पेपर सेटर साइकोलॉजी. स्टूडेंट सोचो अगर मैं पेपर सेटर होता, मैं कैसे क्वेश्चन पेपर बनाता. आई वुड हैव टेकन अ पैसेज किसी न्यूज़पेपर या जर्नल से या कहीं से, उस पैसेज को मैं पढ़ता एंड देन स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करता. अब क्वेश्चन लिखने के बाद मेरा काम है 4 ऑप्शंस को लिखना. तो 2 ऑप्शंस तो मैं ऐसे लिखता जिसमें मैं खुद बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, और ये वही 2 ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर्स. पर जो बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं उनमें स्टूडेंट्स एक मैं सही आंसर लिखता और एक आंसर मैं ऐसा लिखता जो दिखता सही पर एक्चुअली होता नहीं. ओके, एंड दैट इज द रीजन, ये जो ट्रैप होता है, ओके, 1 आंसर विल बी करेक्ट बट 1 आंसर
it will seem to be correct, but actually वो correct होता नहीं है. And that is the reason, students, we people have to be very careful about okay this particular psychology of the paper setter. You people have to understand कि paper setter जब भी किसी student को confuse करना चाहेगा तो वो कैसे confuse करेगा. And students, based on my experience इतने सालों का, मैंने ऐसे 12 points बनाए हैं. Okay, वो 12 points I'll keep discussing with you one by one in one of my classes. उन 12 points को जब आप अच्छी तरह से समझोगे तो ये वो 12 points हैं जिससे पेपर सेटर एक्चुअली स्टूडेंट को मोटिवेट करता है टू मार्क अ रॉन्ग आंसर. तो वो 12 पॉइंट्स हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. एंड आई वाउच, एक बार ये 12 पॉइंट समझ में आ गए तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स, डू अंडरस्टैंड जो ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, यार दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, बी केयरफुल. Okay, and that is the reason. Don't ask a question why this option has to be marked. Indeed, ask a question why this option has to be rejected. See students, if you ask a question कि मैं इस आंसर को क्यों मार्क करूं, तो वो जो गलत आंसर है लेकिन जो दिखता सही है, that will have every possible reason why that option should be chosen. But students, उसमें एक माइनर सा छोटा सा रीजन होगा जिसकी वजह से उस ऑप्शन को हमें छोड़ना है. अंडरस्टैंड? And that is the reason. Don't ask a question why this option has to be chosen. Indeed, ask a question why this option should be rejected. और अगर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन का अप्रोच चेंज किया, believe me, you will get the correct answers in maximum number of cases. Anyway, students, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कैसे दो ऑप्शंस को कंपेयर करके आंसर्स दिए जाते हैं. बट हमें बस क्वेश्चन पूछने का अप्रोच बदलना है, और वो जो 12 पॉइंट्स हैं वो तो स्टूडेंट्स हमें मास्टर करने ही करने हैं. चलिए स्टूडेंट्स, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं. नाउ कमिंग ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेजेस, दीज आर द वेरियस टॉपिक्स. हम लोग अपनी क्लासेस में टॉपिक वाइज भी सारे पैसेजेस को लेंगे. तो बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर, स्पोर्ट्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट से रिलेटेड. तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं. इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कई तरह के पैसेजेस पॉसिबली बन सकते हैं, बट दीज आर द मेजर कैटेगरीज. Sorry. Now coming on types of questions. Now see students, there are varieties of questions. अब students, मैं 2 मिनट इस पर बात करूंगा and then we are going to solve some questions of reading comprehension. And this becomes the first class. तो हम छोटे छोटे कुछ passages से start करेंगे और उनके answers आपको देने भी हैं, and then you people will have to listen to my explanation as well. Now see. Types of questions. So coming on the first one, direct answer type questions. कुछ questions ऐसे होते हैं जो बिल्कुल direct होते हैं. Okay, where the answers are directly given in the passage, no big deal. आप फटाफट question को पढ़ो. Somewhere in the passage, the answer lies. Your job is just to find out that. Okay. So these questions are simple, and in almost all the exams, there may be a few questions based on this particular pattern. Second is implied answer type questions, where the answers are not directly given to us, but we people have to infer the answers. We people have to find out the answers. We people have to deduce the answers. Okay, so answers directly नहीं दे रखे हैं, but हमें passage को पढ़ के हमें answers निकालने understand. Okay, जैसे possibly if the question comes, among the 4 options, the author is most likely to agree with. इन 4 options में से possibly author किससे agree करेगा? अब इसका आंसर डायरेक्टली पैसेज में नहीं मिलेगा. फर्स्ट यू विल हैव टू रीड द पैसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ ऑथर, व्हाट इज ऑथर्स मेंटालिटी, हिज आइडियोलॉजी, उसका विचार क्या है. उस विचार को समझने के बाद, ऑथर की मेंटालिटी को समझने के बाद, देन स्टूडेंट्स यू विल हैव टू कंपेयर ऑल द ऑप्शंस एंड देन डिसाइड कि आखिर ऑथर किस ऑप्शन से एग्री करेगा. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर बेसिकली इम्प्लाइड ओके आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं. एंड देन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द थीम और एसेंस ऑफ द पैसेज. ओके, यस, व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज, माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपसे नहीं भी पूछा जाए तो भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ के सबसे पहले 30-40 seconds के लिए close your eyes and just think about what is the theme of the passage. And when I talk about the theme of the passage, I mean to say what is the main purpose of writing this passage.
व्हाट इज द मेन मैसेज दिस पैसेज कन्वेज? आखिर ऑथर स्टूडेंट्स इस पैसेज को क्यों लिख रहा है, वो क्या मैसेज देना चाहता है? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ राइटिंग द पैसेज? व्हाट इज द मेन मैसेज विच द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार हम किसी पैसेज में 10 बातें लिखते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, इवन इफ देयर आर 10 डिफरेंट एंगल्स गिवन, देयर इज वन कोर मैसेज एंड यू पीपल हैव टू अराइव टू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लास में हो सकता है 10 बातें करें, बट इस क्लास के स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर थीम है एंड यू डू अंडरस्टैंड। मैं 3 घंटे की कोई मूवी देख कर आता हूँ और कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द थीम ऑफ द मूवी, तो क्या मूवी की थीम बताने में मुझे 3 घंटे लगेंगे स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल। ओके, मैं 5, 10, 15 सेकेंड्स में बता दूंगा व्हाट इज दिस मूवी ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द मूवी, इजंट इट? एक 300-400 पेजेस की बुक होती है, उसकी भी सिंगल लाइन की थीम होती है, अंडरस्टैंड? तो हमेशा उस थीम तक पहुंचो। अगर आपने थीम को सही आइडेंटिफाई कर लिया, आई वाउच, ओके, आपके ज्यादातर आंसर्स सही होंगे, अंडरस्टैंड? एंड देन स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द टाइटल। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। अगर थीम आपको ढंग से समझ में आ गई तो टाइटल कैच करना विल नॉट बी वेरी टफ। टाइटल न तो बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, न बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स एक रीडर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ओके, कि कोई रीडर जब उस टाइटल को देखेगा तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉसिबल कंटेंट कैन बी देयर इन दिस पैसेज। तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि इस पैसेज का कंटेंट क्या होगा। अब कई बार स्टूडेंट्स वो टाइटल इतना मिसमैच करता है कि टाइटल को पढ़कर जब हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ओके, इट इज सो डिसओरिएंटिंग बिकॉज द टाइटल डज नॉट मैच द कंटेंट ऑफ द पैसेज। आप इसे यूं समझें, जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है? दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल, इजंट इट? अब आप जस्ट इमेजिन करो, टाइटल कुछ और है, अंदर का कंटेंट कुछ और है। ओके, कितना ज़्यादा डिसओरिएंटिंग हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन हमें रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसे टाइटल पढ़ के समझ में आ जाए कि ब्रॉडली व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज। ओके, डन। Identify the tone and writing style. Yes, this is very important. लगभग हर पैसेज में you will have this question. Okay, what is the writing style and what is the tone? आज की क्लास में स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग सम एग्जांपल्स, सम एक्चुअल पैसेजेस, हम लोग आपको कुछ वर्ड्स बताएंगे कि पॉसिबल टोन्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल स्टाइल्स क्या हो सकती है। लेकिन आने वाली क्लासेस में I'll take a complete session on tones and styles. Well, I'll discuss about all possible words which can come and how you people can identify what is the tone of the passage and what is the writing style. Okay? आप लोगों ने राइटिंग स्टाइल में कभी सुना होगा नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिटोरिक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, एनालिटिकल। ओके, एंड टोन में भी स्टूडेंट्स देयर आर सम पैसेजेस जो बड़े पॉजिटिव टोन के होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और कुछ पैसेजेस बड़े नेगेटिव टोन के होते हैं, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। और भी स्टूडेंट्स इसके बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं। एनीवे, हम लोग आज कुछ वर्ड्स देखेंगे और आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। मिसलेनियस टाइप्स, कई सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। जैसे एक सैंपल क्वेश्चन मैं देता हूं, पैसेज को पढ़कर बताओ कि पॉसिबल ये पैसेज कहां से लिया गया होगा। एंड द ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर, अ मंथली मैगजीन, ओके, पॉसिबली कोई साइंस बुक। अब स्टूडेंट्स आपको पैसेज को पढ़कर डिसाइड करना है कि इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह का एनालिसिस कहाँ से लिया जा सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो मैं हमेशा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की जब भी क्लासेस लेता हूँ, मतलब ये वो क्लासेस हैं जो स्टूडेंट्स मेरे लिए भी बहुत फेवरेट क्लासेस हैं। आई रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड दैट इज द रीजन मैं समय भी पूरा लेता हूँ और स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि पूरे पेशेंस के साथ आप इन्हें सुने भी सही। ओके, चलिए, डन। सो नाउ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन फ्यू पैसेजेस। तो मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है एंड देयर इज ओनली वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, यू पीपल कैन हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन फर्स्ट। वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इसे पॉज करो, सोचो व्हाट इज योर आंसर, और इसके बाद स्टूडेंट्स यू विल लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। चलिए, आई गेस यू पीपल हैव गॉट द आंसर्स। मिला? डन? यस। चलो, आप लोग डिसाइड कर लो आपका जो भी आंसर है। अब मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। ओके,
अगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पॉज करके इसको कंप्लीट करो एंड देन लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आंसर है? हाउ मेनी से 1 2 3 4? आई थिंक अगर मैं गेस करूं तो कई सारे बच्चों का आंसर होगा सिंप्लिसिटी एंड हार्डवर्क। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इजंट इट? या पॉसिबली कुछ बच्चों ने एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे भी आंसर दिया होगा। एंड ये चारों ऑप्शंस इस तरह के हैं और मैं हर क्लास में देखता हूं हर ऑप्शन कोई ना कोई स्टूडेंट तो मार्क करता ही करता है। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स अपन देखते हैं व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज। अल्टीमेटली द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्योरली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। So that is the reason you people have to understand one thing. मैं अपना प्रीजुडिस, अपना पूर्वाग्रह, okay, अपना परसेप्शन कैरी नहीं करूंगा। I'll read the passage and from reader's perspective and from author's perspective क्या मैसेज वो देना चाहता है, I'll just try to give the title. Okay, चलो। अब इसमें लिखा है student sets out on a journey, he starts in search of knowledge, he buys a heap of books and joins the company of teachers and scholars. Books and teachers help him a little, but they cannot carry him very far. They cannot produce by themselves even 1 Newton. तो सारे books and teachers मिलकर भी किसी student को न्यूटन नहीं बना सकते. And that is the reason author says a student has to work hard like a honey bee. Okay, a bee moves from flower to flower, collects juice and turns it into honey. It cannot produce honey in a closed room. A student too has to come out of his narrow world of books and read the great books of life and nature. And इसीलिए हो सकता है कुछ बच्चों ने आंसर सेकेंड ऑप्शन भी मार्क किया होगा। अभी बताता हूँ व्हाट इज द राइट आंसर। तो पहला पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है। द टॉपिक इज सिंपल, द लैंग्वेज इज सिंपल, द वोकैब इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, कमिंग ऑन द सेकेंड वन। But today a student does not take education for a successful life. He aims only at a successful career. He likes to be an officer, a doctor or an engineer. The result is that he fails to become a good man and a useful citizen. He learns the art of earning a living but does not learn the art of living well. Okay, ये पूरा पैराग्राफ बच्चों आपके बारे में ही है। Okay, कि आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA या फिर गवर्नमेंट जॉब ये सब गोल्स लेकर चलते हो, बट एक अच्छी लाइफ कैसे जिए इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। And therefore the ladies and gentlemen coming out of our colleges are no better than dewdrops. Dewdrops समझते हैं स्टूडेंट्स? ओस की बूंद, है ना? ओस की बूंद को अपन कहते हैं ड्यूड्रॉप्स। सुबह सुबह हरी पत्तियों पर जो पानी की बूंदें आती है, दिखने में बहुत सुंदर होती है, बट द मोमेंट यू टच देम दे वैनिश। ओके, ठीक उसी तरह से ऑथर सेज sorry, dewdrops no doubt look lovely, but do they not vanish even at a light touch? It is not enough to pass an examination or win a scholarship. A student must prepare himself to face the realities of life. He should not get lost in a land of dreams and the world of fashions. He should live a simple life and a life of hard work. What a wonderful passage it is. So, schools and colleges से बाहर आने वाले स्टूडेंट्स दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, isn't it? जैसे आप लोग, बट जैसे ओस की बूंद टच करते ही वैनिश हो जाती है। आप लोग भी लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस करते ही कोलैप्स हो जाते हो। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, एंड देयरफॉर द ऑथर सेज केवल एग्जाम को पास करना शुड नॉट बी द पर्पस। हमें स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, अ लाइफ ओके वेयर वी कैन थिंक in a simple manner and the life of hard work. So this becomes the content of the paragraph. Now let us see what is the correct answer. You people have to first understand what is the main message and what the paragraph is all about. ये पूरा पैराग्राफ बात करता है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट को वैसा होना चाहिए, स्टूडेंट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कम से कम टाइटल में स्टूडेंट वर्ड तो होना ही चाहिए, isn't it? Unless the student word is there, possibly ओके जो भी रीडर इस टाइटल को पढ़ेगा विल नॉट बी एबल टू गेस कि ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है। जब ये पूरा पैराग्राफ स्टूडेंट्स की बात करता है तो आई बिलीव दैट कि कम से कम टाइटल में स्टूडेंट वर्ड तो होना ही चाहिए। तो देयरफॉर ये दोनों जो ऑप्शंस है स्टूडेंट्स ये बहुत ही जनरल ऑप्शंस हैं। अच्छा, आप इसको यूं समझो, जैसे फॉर एग्जांपल यू फॉरगेट दिस पैराग्राफ, नाउ आई एम गिविंग यू अ टाइटल सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क, एंड इस पर यू विल हैव टू राइट अ पैराग्राफ। तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको टाइटल दे दिया सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क पर आपको एक पैसेज लिखना है। अब आप क्या लिखना स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, बताओ? यस, पॉसिबली आप किसी जनरल डायरेक्शन में भी जा सकते हो। यू मे राइट अबाउट
Yes, what is the importance of simplicity and hard work in general rather than focusing on students? Because तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमें स्टूडेंट्स पर फोकस करना है जस्ट बाय सीइंग द टाइटल. इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम स्टूडेंट्स वर्ड तो होना चाहिए. Now there are two options here. One is aim of students today and one is students life. Am I talking about aim of students today? हालांकि मैंने एम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया कि आज का स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, बट एक यूजफुल सिटीजन कैसे बने उस बारे में नहीं सोचता. बट फिर भी स्टूडेंट्स यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एम आई टॉकिंग मोर और फोकस्ड अबाउट एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे? अगर कोई मुझे टाइटल देता ना एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे पर लिखना है तो मैं लिखता आज का स्टूडेंट बड़ा एम्बिशियस है, ओके, बड़े एग्जाम्स देना चाहता है, बड़ी पोस्ट पर जाना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, ओके, ग्लोबल करियर बनाना चाहता है. बट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे इन पर्टिकुलर हियर. मैं तो बहुत जनरल बातें कर रहा हूँ स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए. तो आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट एंड थर्ड में, द बेस्ट आंसर हियर इज स्टूडेंट्स लाइफ. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड आई बिलीव दैट आप लोग एग्री करेंगे. एंड इफ यू डिसएग्री, you people have all the rights to raise your doubts, to ask a question, and we can discuss further. Okay, so here students the correct answer is third option. चलिए without wasting time एक और छोटा सा passage, and this time once again you people are supposed to find out the title. ये पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स पर हमारा मेन फोकस है. अभी तो रीडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे देखो कितने बड़े और अच्छे पैसेजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए, एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. पढ़ा, पॉज करो, गो थ्रू दिस. ओके, चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर नाउ? आई थिंक जितना मैंने देखा है मेजरली स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, बिटवीन थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन. इज इट? तो आपका भी कंफ्यूजन इन्हीं दो ऑप्शंस में है या कुछ और है? यस, चलो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स. लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर. एक बार इस पैसेज को मेरे साथ वापस से पढ़ेंगे तो बेटर होगा. देयर इज येट अनदर काइंड ऑफ अनरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स. वापस से पैसेज स्टूडेंट्स के बारे में. स्टूडेंट्स फील दैट थिंग्स आर नॉट एज दे शुड बी. देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, इन्हें हमेशा अंडरलाइन किया करो, इन्हें हमेशा ध्यान से देखा करो. वॉक ऑफ लाइफ. अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एंड वहां पर डैश ऑफ लाइफ, वन ऑप्शन वाज वॉक, वन ऑप्शन वाज टॉक, इसी तरह से 4 ऑप्शंस वर देयर. बट अगर हमने ये फ्रेज कभी सुना है वॉक ऑफ लाइफ, ओके, दैट मीन्स द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइफ, द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल अंडरस्टैंड. तो व्हेन आई से वॉक ऑफ लाइफ, दिस बिकम्स द फ्रेज. तो ऐसे कॉमन जो फ्रेजेस होते हैं वो सुना करो. ध्यान रखना, एक अच्छा स्टूडेंट अगर बनना है ना, ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव करो. ओके, हर छोटी छोटी चीज पर ऑब्जर्व करो. केवल टीचर जो पढ़ा रहा है वो मत सीखो, जो टीचर नहीं भी पढ़ा रहा है उसे भी कैच करने की कोशिश जरूर करें. दे कैन नॉट बी ब्लाइंड एंड डेफ. ओके, आई गेस यू पीपल अंडरस्टैंड डेफ कौन होता है? हु कैन नॉट लिसन. So they cannot be blind and deaf to what goes on around them. Are they not living human beings? How can they remain cut off from society? So it is but natural for them to take interest in the social, political, and economic life of their country. Now, to take active interest in the lives of the people and to voice their feelings is not an act of indiscipline. So students try to understand. Author says, समाज में जो भी चल रहा है, एक स्टूडेंट अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता. उसे पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का. और अगर कोई स्टूडेंट अपनी आवाज़ उठाता है और कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, दैट इज नॉट इनडिसिप्लिन. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज हियर. इट ओनली शोज दैट द वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स इज अलाइव एंड अलर्ट. But to act under the influence of political parties and to join the violent agitations for political ends is no doubt an act of indiscipline. Yes, now you people understand. But under the influence of political parties, if the students join their violent agitations with some political motive, okay, this becomes an act of indiscipline. तो ऑथर कहता है वैसे तो कोई स्टूडेंट अगर अपनी आवाज उठाता है, दैट इज नॉट इनडिसिप्लिन. बट किसी
पॉलिटिकल मोटिव के साथ या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अगर स्टूडेंट किसी वायलेंट एजिटेशन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशंस करना, विरोध प्रदर्शन करना, इजंट इट? भीड़ इकट्ठा हो जाती है सड़कों पर, मोदी सरकार हाय हाय, ओके, द गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगते हैं. व्हाट इज दैट? दिस इज नोन एज एजिटेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, विरोध प्रदर्शन. तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, जितने भी नए वर्ड्स आते हैं कीप नोटिंग दैम. इन सब वर्ड्स को स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करो. एक अलग से कॉपी बनाओ इंग्लिश की, उसका जो फर्स्ट हाफ है दैट हैज टू बी वोकैब. और जब भी कोई नया वर्ड आता है उन्हें स्टूडेंट्स अलग से नोट करने की हैबिट डालो. ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीवे, वोकैब के सेशन में मैं और डिटेल से इस पर बात करूंगा. पर फिलहाल स्टूडेंट्स, अगर आप राजनीतिक उद्देश्य से आपके पॉलिटिकल मोटिव के साथ वायलेंट एजिटेशन में पार्टिसिपेट करते हो, author says yes, it is indiscipline, and then the government has a right to deal with the problem as a law and order problem. In some cases, however, students alone are not responsible for indiscipline. Our school and college committees and university bodies have become hotbeds. Okay, गढ़ बन चुके हैं वो politics के. Most of the members of these committees are politicians. They have to take the help of both the students and the teachers alike to gain their ends. Okay, there are again teachers, politicians too. They all encourage indiscipline among students. And this type of indiscipline can go only when politicians quit these temples of learning. So in the second paragraph, we people are actually trying to understand who is responsible for this indiscipline. And the author says, only students are not responsible. Okay, teachers, politicians, okay, they all are responsible for this indiscipline which is there among the students. तो अब आप समझना स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में we tried to define what is indiscipline and what is not. And in the second paragraph, we focused on understanding who is responsible for indiscipline. और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की. अब आप देखो, इस पूरे पैराग्राफ में दो कीवर्ड्स हैं. One, we are talking about students, and second, the crux is, the most important point is, we are trying to understand what is indiscipline and who is responsible for that. So the second keyword is indiscipline. अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचें कि सर आंसर पॉलिटिशियंस भी तो हो सकता है. ओके, बिकॉज पॉलिटिशियंस भी तो कीवर्ड है, इतनी बार आ चुका है. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, इनडिसिप्लिन को डिफाइन करते समय पॉलिटिक्स का रेफरेंस आया, या फिर इनडिसिप्लिन के लिए कौन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते समय वी हैड द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस. But that is not the main purpose of writing the passage. The main purpose is to talk about indiscipline, to understand. So indiscipline को discuss करते समय we had a reference of politicians, but still the main purpose is to talk about indiscipline. So here students, I'll go with fourth option, indiscipline among students. एक तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और एक हम indiscipline की बात कर रहे हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं थर्ड ऑप्शन को मार्क नहीं करूंगा. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है indiscipline, that is missing. जबकि इस पूरे पैसेज का मेन पर्पस है टू डिस्कस indiscipline and who is responsible for it. आई होप स्टूडेंट समझ में आया. चलो एक और छोटा सा पैराग्राफ मैं लूंगा, और इस बार एक छोटा सा पैराग्राफ, बट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ओके, चलिए, तो दिस बिकम्स द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्लास. तो 3 क्वेश्चंस हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, टॉपिक बहुत सिंपल सा है, जस्ट 5-7 मिनट्स एंड वी आर गोइंग टू एंड द सेशन. चलो पॉज करो, गो थ्रू करो, समझो अच्छी तरह से एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर्स. ओके, शैल वी डिस्कस नाउ? ओके, चलिए सुनना स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट्स. स्पीच इज ग्रेट प्रेजेंस. एक तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है ना, स्पीच के बारे में. अच्छा, हो सकता है वर्ड्स फिर भी पॉसिबली ऐसे कुछ वर्ड्स हों जिसके मीनिंग्स हमें पता नहीं हो, या हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करें. ओके, लेट अस सी. कमिंग ऑन, चलिए पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, अज्यूमिंग दैट. ओके, आई एम कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. The best way to win a friend is to avoid. Yes, what is the right answer? Okay, yes. Chalo, the answer is given here. A slip of the tongue, the use of unusual word or of an ambiguous word, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Students, इन 3 चीजों की वजह से हम दुश्मन बना बैठते हैं जहां पर अपन दोस्त बनाने चले थे. कौन कौन सी चीजें? Slip of the tongue,
सेकेंड, अनयूजुअल वर्ड्स को यूज करना, एंड थर्ड, एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज करना. So even if you people don't know what is the meaning of ambiguous, let us not worry. अगर ambiguous का meaning नहीं भी पता है, ज़्यादा चिंता मत करो, but still you people can focus on marking the correct answer. Still you people can mark the correct answer. Because question क्या है? The best way to win a friend is to avoid. अगर दोस्त बनाना है तो क्या avoid करना है? Understand. Yes, ambiguous होने से तो दुश्मन बन जाते हैं. तो बस हमें avoid क्या करना है? Ambiguity. The correct answer is ambiguity. So students do understand fourth option becomes the correct answer and this becomes a direct question. Okay? चलिए, वैसे ambiguous का meaning क्या होता है? Let us try to understand. To understand the meaning of ambiguous, you have to first understand what is the meaning of ambi. Ambi becomes a root word जिसका basic मतलब होता है students both. Understand. तो जब मैं ambiguous कहता हूँ, इसका मतलब है something which gives two meanings. Something which gives two meanings. And that is the reason. Okay, the listener is not able to understand आखिर वो speaker बोलना क्या चाहता है. So anything which is confusing or anything which is not clear can be called as ambiguous. Okay, understand ambi का मतलब both. So what is the meaning of ambiguous? Something which is not clear. Okay, और इसी को students हम लोग और कहते हैं equivocal. Equivocal का मतलब भी होता है something which is confusing, not clear. और ये जो root word है ना students ambi, इससे बहुत सारे words और भी बनते हैं. Okay, कभी आप लोगों ने सुना है ambivert? Yes, what is the meaning of ambivert? Yes. अच्छा, कभी सुना होगा ना introvert, extrovert, isn't it? तो बस उसी से बनता है ambivert. तो introvert and extrovert जिसमें दोनों qualities होती है उसे अपन कहते हैं ambivert. Anyway students, एक छोटा सा assignment देता हूँ. Now after the class, ठीक है, you people will have to find out. Okay, more such words where the root is ambi. Okay, चलिए आप पता करना. अब वो क्या आपकी क्लासेस में अपन इन सब पर और डिटेल से बात करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरनी? ओके, आयरनी क्या होता है? आयरनी इज समथिंग व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार अपने जो कमेंट्स होते हैं बड़े आयरॉनिकल होते हैं. जैसे मानकर चलें किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बट स्टिल इफ आई से वाव यार व्हाट अ वंडरफुल हैंडराइटिंग, अगर मैं कहता हूँ वाव यार क्या शानदार लिखता है, तो यस उसे समझ में आ जाएगा माई स्टेटमेंट इज आयरॉनिकल. एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है, बट मैं अपोजिट कह रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट कह रहा हूँ. दिस इज व्हाट आयरनी इज ऑल अबाउट. यू जस्ट इमेजिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला वो खुद ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे. ओके, तो दिस बिकम्स अ सिचुएशनल आयरनी. अंडरस्टैंड. एक और एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वर्ड है बिग. अच्छा, यू पीपल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग? बड़ा. अब जिसका मीनिंग ही बड़ा है, how come that word itself is so small? Yes, एक big जिसका मीनिंग ही बड़ा है, how come the word itself is so small? So what is this? This also becomes an example of irony. Yes, verbosity का मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्डी होना. Okay, unnecessarily स्टूडेंट जब आप ड्रैग करते हैं, जरूरत से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, तो इसको अपन कहते हैं verbosity. And pomposity जो दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है. अंडरस्टैंड. दिस मैन इज सेल्फ प्रेजिंग. आप इसके साथ जब भी बैठोगे खुद की तारीफें करता रहेगा. एनीवे, अभी मैं वो क्या पर बहुत फोकस नहीं करना चाहता. अदरवाइज फिर भी अगर आपको इनके मीनिंग समझने हैं, इनके कुछ सिनोनिम्स देखने हैं, तो आप पॉज करके डिक्शनरी रेफर करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स. इन सबको हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में. ओके, वो क्या आपकी क्लासेस में. नाउ while talking to an uneducated person, we should use. Yes, which is the right answer? क्या लगता है? मुझे लगता है यहाँ ज़्यादातर बच्चों ने, कुछ बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, बट फर्स्ट ऑप्शन इज इंडीड नॉट करेक्ट. आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर थर्ड होगा. लेट अस सी नाउ, जस्ट अ सेकेंड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर थर्ड होगा. लेट अस सी कहाँ दे रखा है इसका आंसर. यस. Again, different classes of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated may strike an uneducated listener as pompous. Problem क्या है? किसी educated की ordinary speech किसी uneducated के लिए pompous हो जाता है, मतलब भारी भरकम बड़े बड़े words हो जाते हैं. तो किसी educated की ordinary speech that actually becomes pompous for
someone who is uneducated. So now the big question is, आखिर मैं uneducated के साथ interaction करूंगा कैसे? Understand? That becomes the big question. So while talking to an uneducated person, we should use what? देखो, ordinary speech तो आंसर हो नहीं सकता, because जो educated के लिए ordinary है, वो uneducated के लिए tough है. So now what has to be the answer? Now, in case if you say simple words should be the answer. But बेटा simple words ये भी तो relative term है ना. अगर educated के लिए जो simple है, हो सकता है uneducated के लिए बहुत ही tough हो understand. Okay, but what is the meaning of simple words? The words which can be simple for me may not be so simple for you. तो अगर मैं मेरे हिसाब से simple word use करूंगा तो तुम्हारे लिए वो tough हो सकता है understand. तो फिर मैं बात कैसे करूं? Okay, so here the best answer possibly अगर आप सोच रहे हैं polite language. Anyway, we are not discussing about politeness or rudeness. इस पर तो कोई discussion ही नहीं है. Okay, तो यहाँ पर जो best answer होगा that is second option. Why second option is the best answer? Because आप uneducated के साथ बात कैसे करेंगे? उसे जो words आते हैं use them. भाई आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो सारे words आते हैं. Okay, so what is needed? You use the words which that person is able to understand. So you have to interact with that person in his vocabulary. So students try to understand. ये जो question था, the answer is not very much direct here. You people have to deduce the sentence. You people have to read the sentence, and then you people will have to deduce the correct answer. So it was a very interesting and very good question. Okay, possibly majority of the students will mark a wrong answer here. So students, I think आप convinced होते हो second option is the best answer. Yes, एक बार वापस से सोचो, read the sentence, you will actually come to know. Okay, चलिए, speech can be cursed because it can. Now this becomes the most direct question, and the correct answer here is third option. Why third? Because अगर आप first sentence पढ़ोगे तो पता चलेगा. It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood, and therefore students, it can become a curse. Otherwise, it is a great blessing. So speech can become a curse also. कि अगर अपन ने इसको ढंग से यूज नहीं किया तो possibly आपका जो attitude है, okay, that can be misunderstood. So therefore, it can become a curse. So this was another simple paragraph. अब students last 2 minutes general tones, ये कुछ words हैं. Anyway, ये tones positive हैं, ये words negative हैं. Okay, इन सब words के meanings अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर इन सब को हम लोग क्लास में लेंगे जब मैं टोन्स एंड स्टाइल्स की बात करूंगा, वो क्या आपकी क्लास लूंगा. बट मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स पॉज करो, इन सब वर्ड्स को नोट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स ऑन योर ओन. डिक्शनरी खोलने की आदत डालो. ओके, तो प्लीज इन सब वर्ड्स को लिखेंगे, डिक्शनरी रेफर करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. एंड दीज आर द जनरल राइटिंग स्टाइल्स. ओके, नरेटिव, जिस तरह से एक स्टोरी टेलिंग होती है ना, ओके, कहानी बोली जाती है, उसको कहते हैं नरेटिव स्टाइल. ओके, सो व्हाट एवर हैज हैपन, मैं सिर्फ उसे प्रेजेंट करता हूँ. ओके, डायरेक्ट वर्ड्स में प्रेजेंट करता हूँ. दिस इज व्हाट बीइंग नरेटिव इज. एनीवे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, तो इसलिए इन सबको भी हम बहुत डिटेल से समझेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे, एंड दैट इज द रीजन अभी फिलहाल आई एम नॉट डिस्कसिंग मच ऑन दीज वर्ड्स. ओके, बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, अदरवाइज जस्ट वेट फॉर दी कमिंग क्लासेस. ओके, सो बाय द स्टूडेंट्स द फर्स्ट सेशन गेट्स ओवर. आई थिंक बड़ा मजा आया होगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर एक कमिटमेंट, इंटरेस्ट, कन्विक्शन आ गया होगा कि सब फाइनली इन एग्जाम्स को अगर निकालना है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर कमान बनानी है, आंच आइकन के साथ हमको आगे बढ़ना है. एंड बिलीव मी, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हम बात करें, let it be maths, DILR, English, group discussion, personal interview, okay, anything. इतने सालों में सिस्टम इतना रिफाइंड हो चुका है. okay, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 90% काम आइकन करेगा. केवल स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 10% अपनी रेगुलरिटी और लगन देनी है. ओके, सो कैन यू डू दिस? श्योर. सो ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. हाँ, सभी दोस्तों को आइकन एस्कैट के बारे में, आइकन इंस्टीट्यूट के बारे में कीप शेयरिंग. थैंक यू वेरी मच.